Hello dear students, myself Sayyid Hussain and I welcome you all to my YouTube channel Pillars Institute. Today we are going to discuss chapter number 1 of economics, that is the village Palampur, story of the village Palampur. It is the first chapter in class 9 CBSE. Today we are going to discuss the chapter in detail, covering the following content. In this chapter, we are going to discuss the following content regarding with the village Palampur. First is demographic structure of Palampur. Demographic structure, in this we come to know about the population, extent of population, land division of the land, facilities, public infrastructure which is being provided, which is being available in the village, and related things. Second is production and its factor. In this chapter we come to know about production and the factor which will affect the production, which are being essential in order to carry out the production. Third is cropping pattern, because we are going to discuss a village, and in a village the prime activity of the people is farming. So here in this village Palampur, what is the cropping pattern? We are going to discuss about that. Along with green revolution and its effect. What is green revolution and what are its advantage and disadvantage? Then fifth content is problem faced by poor farmers and farm laborers. What are the problems that are being faced by the poor farmers, small farmers, while doing the farming? Like shortage of capital, like unavailability of basic facilities, like problem of credit. All such kind of problems, uneven distribution of land, such kind of problems which are being faced by the poor farm, we will discuss in detail in this content. Then last one is non-farming activity. Apart from farming, what are the activities which are being performed in a village Palampur by the people? In this particular section, we come to know about different activities apart from farming, that is transportation, manufacturing, shopkeeping, daily activity, all that stuff. All these activities are going to be discussed under the header of non-farming activity. So students, now let us discuss the chapter in detail, starting with the demographic structure of Palampur. Demographic structure, in this particular header we are going to discuss about a brief introduction of Palampur, its geographical condition, its neighboring villages, and the facilities that are being provided by the government in this village, like road, transportation, electricity and health. So to begin with, शुरू करते हैं. Village Palampur is an imaginary village representing a village of northern India. This village is well equipped, well connected by a metal road with the neighbor village like Raipur and Raiganj and Shahpur. These two are the neighboring villages, Raiganj and Shahpur. The village Palampur is well connected with road with these two neighboring villages. And people use many modes of transportation here, like car, truck, bus, bullock cart, for the migration of people as well as the migration of things. इस गांव में लोग जो साधन इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसमें कार भी है, ट्रक भी है, व्हीकल्स जो है वो कैरियर भी है, यानी गुड्स कैरियर भी है, बुलक कार्ट है, बाइक्स है, जिससे न सिर्फ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बल्कि सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, मूव कराते हैं. इन ऑर्डर टू सेल, ऑब्वियसली बात है, एक सामान को दूसरी जगह ले जाने पर्पस क्या है, सेल करना, उसको बेचना, उसको इस्तेमाल करना. इसके अलावा इस गांव में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, यहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, 2 प्राइमरी स्कूल हैं और 1 हाई स्कूल अवेलेबल है, हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है. इन दिस विलेज वी हैव 1 गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड 1 प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक. तो यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है. इन केस अगर कोई बीमार हो जाता है, इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हेल्थ प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर एक जो है पब्लिक हॉस्पिटल है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी. इसी तरह इस गांव में ज्यादातर मकान ब्रिक्स से बने हुए, यानी पक्के मकान है.
और यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 450 फैमिलीज। द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज पालमपुर इज 450 फैमिलीज। 450 परिवार यहाँ रहते हैं, लोग नहीं, 450 पीपल नहीं, 450 फैमिलीज। एंड इन वन फैमिली वी हैव मोर देन 5 एंड मोर देन 5 पीपल। गांव में अक्सर परिवार बड़े होते हैं, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 11, क्योंकि कंबाइंड फैमिली रहती है, ज्वाइंट फैमिली रहती है। तो यहाँ पर 450 फैमिलीज है। 450 फैमिलीज इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज पालमपुर। इस 450 फैमिलीज में majority of the people belonging to the lower caste, more than 75% of the population belongs to the lower caste in Dalits, backward people, जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं, जिनके पास लैंड अवेलेबल नहीं है, जिनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से वो बैकवर्ड है। और 20% 25% पीपल आर द लैंड ओनर्स। ये रिच क्लास पीपल है, अपर क्लास पीपल है, अपर कास्ट पीपल है। और मेजॉरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज पालमपुर इज ओन्ड बाय दीज पीपल। जितना भी लैंड है उसका मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन किसके पास है? इन्हीं बड़े फार्मर्स के पास में है, इन्हीं बड़े लोगों के पास में, अपर कास्ट पीपल के पास में है। जो हमारे बैकवर्ड पीपल है, यानी मोर देन 75% ऑफ द पीपल, दे लिव इन अ सेक्लूडेड एरिया इन द विलेज। कोई विलेज कॉर्नर में सेक्लूडेड एरिया वहां पे रहते हैं, जिनमें लैंडलेस लोग भी हैं और वो लोग भी हैं जिनके पास बहुत थोड़ा लैंड है। There are more than 240 families in Palampur who have less than the 2 hectare land, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। सिर्फ 60 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है, और 180 के अराउंड फैमिली ऐसी हैं अप्रॉक्स जिनके पास लैंड ही नहीं है, लैंडलेस पीपल। तो ये एक छोटा सा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर था। यहाँ जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, तो यहाँ पर ट्यूबवेल अवेलेबल है फार्मिंग के लिए, यानी यहाँ के लोग रेन पर इतने डिपेंडेंट नहीं है इरिगेशन के लिए जितना बाकी जगह पर होते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो मेजर एक्टिविटी है लोगों की वो फार्मिंग। किसी भी विलेज है, विलेज में आप सभी लोग जानते हैं कि द मेजर एक्टिविटी इन अ विलेज इज फार्मिंग। यहाँ ज्यादातर लोग कौन होते हैं? फार्मर होते हैं। उनका मेजर काम, जो बेसिक काम होता है, फार्मिंग होता है। फार्मिंग के अलावा भी लोग यहाँ पर दूसरे कामों में इन्वॉल्व हैं, जिन्हें हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के हेडर में डिस्कस करेंगे। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी वो कौन कौन से काम हैं जो फार्मिंग के अलावा लोग यहाँ करते हैं, जिनमें जो हम मेजर एक्टिविटीज जो पढ़ेंगे वो है ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे लेवल पर कुछ मैन्युफैक्चर करना है, प्रोसेस करना, इसी तरह से शॉपकीपिंग, ट्रेड करना गुड्स में और सर्विसेज में, और इसी तरह से डेयरी एक्टिविटी। डेयरी एक्टिविटी फार्मिंग के अलावा गाँव में दूसरा सबसे बड़ा काम होता है डेयरी एक्टिविटी। इसमें हम क्या करते हैं? मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और मिल्क को प्रोसेस करके मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम मार्केट में सेल करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, किसी भी विलेज के अंदर फार्मिंग के अलावा डेयरी एक्टिविटी भी होती है, वो एक बड़े स्केल की एक्टिविटी होती है, इसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और अक्सर फार्मर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यानी फार्मिंग के अलावा वो डेयरी का काम करते हैं, जिसमें वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और फिर मिल्क को प्रोसेस करके मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन प्रोडक्ट को मार्केट में जाके सेल करते हैं। आसपास के गांव में मिल्क सप्लाई होती है। मिल्क इज अ वेरी एसेंशियल कमोडिटी, हम सभी जानते हैं हमारे लिए मिल्क कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करेंगे, ये एक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर था, एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था विलेज पालमपुर का कि पालमपुर गांव कैसा है। अब बात करेंगे हम प्रोडक्शन एंड इट्स फैक्टर की। प्रोडक्शन सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोडक्शन है क्या, तो उसके फैक्टर्स अपने आप समझ आ जाएंगे। प्रोडक्शन इज एन एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। प्रोडक्शन एक काम है जिसमें हम क्या करते हैं? गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, रॉ मटेरियल को, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके गुड्स का प्रोडक्शन, ये है प्रोडक्शन। इसका नाम ही है टू प्रोड्यूस। इट इज एन एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड। किसी चीज की वैल्यू में कुछ ऐड कर देना, ये भी प्रोडक्शन है। अब वैसे तो और भी है डेफिनेशन प्रोडक्शन की, लेकिन जो जनरल डेफिनेशन है और कॉमन डेफिनेशन है वो दो ही है कि इट इज एन एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, या फिर it is an act of adding something to the value of a thing। किसी चीज की वैल्यू में कुछ ऐड कर देना। इसका एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगी। जैसे आपके पास एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का तना, लकड़ी का लट्ठा, किस काम आ सकता है? जलाने के, फ्यूल के तौर पे काम आ सकता है। लेकिन अगर हम इस लकड़ी के तने को, लकड़ी के लट्ठे को, वुडन ब्लॉक को रीशेप करके एक स्टिक बना दें या एक चेयर बना दें, तो अब कंटेंट वही है, यानी पहले भी वो लकड़ी थी, अभी भी लकड़ी है, लेकिन पहले सिर्फ लकड़ी का एक लट्ठा था, अब वो एक ब्यूटीफुल सी, एक खूबसूरत सी चेयर हो गई। अब ये दो पर्पस सर्व करती है। लकड़ी है, जलाई जा सकती है अभी भी,
और इसके साथ साथ बैठने के भी काम आ सकती है। जब तक ये लकड़ी का लट्ठा था इसकी वैल्यू कम थी, लेकिन जैसे ही ये डिजाइनर चेयर बनी इसकी वैल्यू बढ़ गई। किसी चीज की वैल्यू में कुछ ऐड कर देना, ये भी प्रोडक्शन। हमने क्या किया, लकड़ी के लट्ठे से कुर्सी चेयर प्रोड्यूस की, इट इज एन एक्ट ऑफ प्रोडक्शन। वी हैव प्रोड्यूस अ चेयर फ्रॉम अ वुडन ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। किसी चीज से कुछ बना देना। इसी तरह नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके, एक्सप्लॉइट करके जब हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उसे भी प्रोडक्शन कहते हैं। खेत का इस्तेमाल किया, जमीन का इस्तेमाल किया, पानी का इस्तेमाल किया और हमने फसल उगा दी, तो ये जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप है, ये जो क्रॉप पैदा हुई है, ये क्या है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। इसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज को हमने एक्सप्लॉइट किया और क्रॉप प्रोड्यूस कर दी। आता है समझ में? तो ये प्रोडक्शन है। अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है, कहलाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मींस दोज थिंग्स व्हिच विल अफेक्ट द प्रोडक्शन, जिनसे प्रोडक्शन अफेक्ट होता है। अब प्रोडक्शन अफेक्ट कैसे होगा, वो या तो हो पाएगा या तो नहीं हो पाएगा। तो प्रोडक्शन कोई पर्सन तो है नहीं, इट इज मियरली एन एक्ट। ये एक एक्शन है, एक वर्ब है, एक काम है। तो काम इफेक्ट कैसे होता है, या तो काम पूरा होगा या तो नहीं होगा। वो चीजें जो काम के कंप्लीशन को इफेक्ट करें, काम के नेचर को इफेक्ट करें, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है। मोटे मोटे तौर पर चार हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स या 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनको मैं यहां मेंशन कर देता हूं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। पहला वो है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल एंड फोर्थ वन इज ह्यूमन कैपिटल। इस ह्यूमन कैपिटल को हम एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। These are the 4 factors of production which will affect the production. इनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं। अगर आपको प्रोडक्शन करना है, ये 4 चीजें आपके पास होनी मैंडेटरी हैं। इनमें से एक भी अगर नहीं होगा तो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। अब मैं इन चारों को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि ये चारों क्या हैं, क्यों हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैंड की। इसकी बात करते हैं लैंड की। लैंड जो है ये कहलाता है फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर यानी नेचर के द्वारा दिया गया मुफ्त का माल, जो नेचर ने हमें फोकट में दिया हुआ है, इसके बदले में कोई पैसे नहीं दिए। मिसाल के तौर पे एग्जांपल से बात समझ में आती है। अगर हम देखें, रिवर इज अ पार्ट ऑफ नेचर। भाई रिवर नेचर है, कंपोनेंट ऑफ द नेचर। रिवर कंपोनेंट ऑफ द नेचर है। रिवर से जब आप पानी लेते हैं, नदी से जब आप पानी लेते हैं, नदी आपसे बिल मांगती है। भाई मैं जहां रहता हूं यहाँ पर 2 नदियां हैं, जमुना और गंगा। मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, प्रयागराज में रहता हूँ, यहाँ पर 2 बड़ी नदियां हैं, जमुना और। अब मैं गंगा जी के पास जाऊं, गंगा जाऊं, नदी के पास जाऊं, गंगा जी से पानी निकालूं एक बाल्टी, उसके बाद गंगा जी तुरंत वहां से निकल प्रकट को साक्षात कहे, वक्त तुमने मेरे से 1 बाल्टी पानी लिया है, चलो बिल निकालो। क्या ऐसा होता है कभी? कभी रिवर आपसे पानी के बदले में कुछ मांगती है? नहीं। मैं गंगा जी के पास जाता हूं, वहां जाके मस्त नहाता हूं, अब बाल्टी भर भर के खूब नहाता हूं। क्या जमुना जी वहां से मुझसे उस पानी का कोई टैक्स, उस पानी का कोई रेम्यूनरेशन, उस पानी के एक्सचेंज कुछ मांगती है? नहीं। रिवर इज अ नेचुरल कंपोनेंट, वो कभी आपसे बदले में कुछ नहीं मांगेगी। जो कुछ भी है फ्री है। नेचर में एयर है, नेचर ने हमको एयर प्रोवाइड कर रखी है। हम सांस लेते हैं, हवा 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 लेते हैं, सांस में छोड़ते हैं, हवा ही होती है। तो ये जो एयर आप ले रहे हो, यूज कर रहे हो, क्या कभी नेचर ने इस एयर का आपसे पैसा मांगा? नहीं, इट इज कंप्लीटली फ्री। इसी तरह से सन, सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। तो क्या भैया सुबह 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 सूरज देवता प्रकट होते हैं, अपनी रोशनी और किरणें आपको देते हैं, और फिर अगले शाम को जब वो अस्त होते हैं तो क्या आपके पास बिल भेजते हैं, आज सुबह से लेके शाम तक इतनी बिजली दिया है, ना पैसे निकालो? मतलब मजाक लग रहा होगा, लेकिन कभी आप सोचिए, क्या सूरज सुबह निकल के शाम को अस्त होते टाइम आपके पास कोई बिल भेजता है कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग में इतनी लाइट दिया है, लो निकालो पैसे? नहीं, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री है हर किसी के लिए, चाहे मैं हूं मेरे लिए फ्री, दूसरा पर्सन उसके लिए भी फ्री। इट इज फ्री फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग।
तो यही कहलाते हैं फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। और ये जितने भी गिफ्ट्स हैं सब के सब कलेक्टिवली कहलाते हैं लैंड। कॉमन आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, आम आदमी मैंगो पीपल, आम आदमी मैंगो पीपल, बेचारा मैंगो पीपल है, उसको सब आम बना डालते हैं। जनरल लोगों के लिए लैंड का मतलब क्या? आप किसी आम आदमी से पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड, तो आपसे कहेगा जमीन। ये बताएगा कोई भाई लैंड क्या है? वो जमीन है। भाई मैंने लैंड खरीद लिया, मैंने जमीन खरीद लिया, उसके लिए लैंड का मतलब जमीन है। हमारे लिए भी लैंड का मतलब जमीन है, लेकिन हमारे लिए लैंड का मतलब सिर्फ जमीन नहीं है। हमारे लिए लैंड का मतलब हर वो फ्री गिफ्ट है जो नेचर ने दिया। जमीन भी तो नेचर ने फ्री में दी रखी है। क्या जमीन का कोई टैक्स या जमीन का कोई पैसा आप नेचर को देते हो? अच्छा, बच्चे यहाँ सोच रहे हो भाई लैंड खरीदते हैं, फ्री में कहाँ मिला? लैंड तो खरीदना पड़ता है। तो लैंड आप नेचर से नहीं खरीद रहे हो, लैंड आप गवर्नमेंट से खरीद रहे हो। गवर्नमेंट पोजीशन का पैसा लेती है, लैंड का पैसा, अरे यार नहीं यार बात समझ में, लैंड का पैसा नहीं लेती गवर्नमेंट। आपसे जो रजिस्ट्रेशन का पैसा लेती है, रजिस्ट्री का पैसा लेती है या लैंड का पैसा लेती है, वो पोजीशन का होता है, अधिकार। आज से ये लैंड तुम्हारा, ये अधिकार देने का वो पैसा है। लैंड का पैसा गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के बाप नहीं ले सकते आपसे, क्योंकि लैंड गवर्नमेंट का ही नहीं, लैंड तो नेचर का है। भाई जो चीज मेरी है नहीं, जो चीज मेरी है नहीं, मैं उसका आपसे पैसा कैसे ले सकता हूं? लैंड क्या गवर्नमेंट लेके आई थी अपने घर से? नहीं, लैंड पहले से गवर्नमेंट नहीं थी तब भी लैंड था, गवर्नमेंट है अब भी लैंड है। गवर्नमेंट सिर्फ क्या है? पोजेसर, इस लैंड की पोजेसर। तो वो इस पोजेशन को जिसको देती है उससे उसका बदले में पैसे लेती है। गवर्नमेंट आपसे पानी का पैसा लेती है, वाटर टैक्स, तो वो पानी का पैसा नहीं है, पानी की सप्लाई का पैसा है। पानी सप्लाई करने का पैसा लेगी, पानी का पैसा उसके बाप नहीं ले सकते। पानी अपने घर से दे रही है क्या यार? ये बात समझ में? अरे भैया, गवर्नमेंट जो आपसे वाटर टैक्स ले रही है, वो वाटर टैक्स वाटर का नहीं है, वाटर सप्लाई का है। अगर गवर्नमेंट जो वाटर सप्लाई नहीं देती तो तुम्हें नदी तक जाना पड़ता पानी लेने के लिए कि नहीं? आ रही बात समझ में? तो जाना ना पड़े, घर पर बम्बा खोलो मस्त पानी आए, शावर चलाओ मस्त पानी आए। ये सप्लाई किसने प्रोवाइड की है आपको? गवर्नमेंट ने। तो इस वाटर सप्लाई का वो आपसे टैक्स लेती है। वरना पानी का टैक्स तो कैसे मांगेगी जब पानी उसने बनाया नहीं, पानी उसका है नहीं, वो टैक्स कैसे लेगी आपसे? बादल बरसते हैं, पानी देते हैं आपको, क्या बादल से पर्ची गिरा के जाते हैं क्या? भैया इतना पानी गिराया है, तुम आप मान लो इतना पैसा निकालो। फ्री, इट्स फ्री, कंप्लीटली फ्री फॉर एवरीवन, इट्स फ्री। तो इन इकोनॉमिक्स लैंड डू नॉट ओनली मीन अ सॉइल बट all the free gifts which is being given by the nature to the whole of the humanity is called as land. इसमें एयर भी आ गया, वाटर भी आ गया, सनलाइट भी आ गई, सॉइल भी आ गई। सॉइल जमीन जिसको हम कह रहे हैं अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, वो भी आ गई। बात आई, सबको क्लियर हो गया? तो ये है लैंड। अब बात करते हैं लेबर की। लेबर क्या है? लेबर का मतलब है एफर्ट। लेबर मीन्स एन एफर्ट। कॉमन लैंग्वेज में लेबर का मतलब होता है पर्सन हु परफॉर्म द एफर्ट, हु विल डू द एफर्ट। आम लैंग्वेज में हम लेबर किसे कहते हैं? उस आदमी को, मजदूर को, उस आदमी को जो मजदूरी करता है उसे हम लेबर कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में लेबर का मतलब क्या है? एफर्ट। इन इकोनॉमिक्स लेबर मीन्स एफर्ट। एफर्ट्स। अब ये एफर्ट फिजिकल भी है, मेंटल भी। फिजिकल एफर्ट, मेंटल एफर्ट। अगर हम अपने शरीर से कोई श्रम करें, शरीर से कोई परिश्रम करें, शरीर से कोई मेहनत करें, कहलाएगा फिजिकल एफर्ट। और अगर हम कोई दिमाग से मेहनत करें, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं दिमाग से, हालांकि मैं दिमाग से पढ़ा रहा हूं और मेरी बॉडी यूज हो रही है, मैं दोनों एफर्ट कर रहा हूं, फिजिकल भी और मेंटल भी। अ पर्सन कैन डू बोथ एट अ सेम टाइम। मैं बोल रहा हूं, दिमाग इस्तेमाल कर रहा हूं, मेंटल एफर्ट है, और साथ ही साथ मैं खड़ा हूं, मेहनत कर रहा हूं, पैर दर्द हो रहे भाई, तो फिजिकल एफर्ट भी है। यानी फिजिकल एफर्ट, मेंटल एफर्ट एट द सेम टाइम। लेकिन है तो दो ना, एक फिजिकल यानी अपनी बॉडी के द्वारा दिया गया एफर्ट, और एक अपने मेंटल इंटेलेक्ट को इस्तेमाल कर दिया गया एफर्ट। दोनों क्या कहलाएगा? एफर्ट। और वो क्या कहलाएगा? लेबर। वो लेबर तब कहलाएगा, यानी ये एफर्ट लेबर तब बनेगा जब इसके बदले में आपको कुछ मिले। यू विल रिसीव समथिंग इन रिटर्न फॉर योर एफर्ट, देन दैट एफर्ट इज कॉल्ड एज लेबर। आगे बात समझ में? यानी हमारा वो एफर्ट जिसके बदले में हमें कुछ मिले। अब ये कुछ क्या हो सकता है? पैसा हो सकता है, सामान हो सकता है, कोई चीज हो सकती है। एनीथिंग दैट वी रिसीव
in the exchange of our effort, then that effort is called as labor. बात आ रही समझ में? अगर हमने घर में चाय बनाई, मम्मी आई बोली ऐसा है, हम खाली बैठे हुए थे मोबाइल चला रहे थे, मम्मी आ गई बोली ऐसा है खाली बैठे हो चलो जाओ चाय बना के लाओ। अब मम्मी ने मुझसे कहा चाय बना के लाओ, हम चाय बनाने चले गए। हमने जो चाय बनाई है ये इसके बदले मम्मी में कोई पैसा नहीं देने वाली, ना कुछ देने वाली है, बस चाय बना के चले आए, तो ये लेबर नहीं कहलाएगा। इकोनॉमिक्स में से लेबर नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे फिजिकल एफर्ट। क्या कहेंगे? फिजिकल एफर्ट। यानी लेबर मींस दैट एफर्ट इन एक्सचेंज ऑफ विच यू आर गोइंग टू गेट समथिंग इन रिटर्न। बदले में कुछ मिलेगा तो उस एफर्ट को हम लेबर कहेंगे, अदरवाइज फिर क्या है, सिर्फ सिंपली फिजिकल एफर्ट है और कुछ नहीं। आगे बात समझ में सबको? चलिए आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और बच्चों तक भी ये बेनिफिट पहुंच सके। और सब्सक्राइब मैं इसलिए भी कहता हूं कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे की जो भी अपडेट्स है वो आपको बिना किसी इंटरप्शन के आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। ओके बस, थैंक यू।